Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says a particle performing SHM having amplitude A possesses velocity root 3 by 2 times the velocity at the mean position. The displacement of the particle shall be option A by 2, option B, A root 3 by 2, option C, A by root 2, option D, A root 2. So, to understand the question, we need to understand about the concept of equation of SHM. So there are three important equation of SHM that we need to keep in mind. So for a particle performing SHM, सबसे पहला equation we need to keep in mind is of displacement. So displacement of a particle is given by the expression x equals to a sin omega t plus phi. And यहाँ पे we need to also be clear with the terms. A यहाँ पे जो होता है वो amplitude होता है, that is the maximum displacement of the particle from mean position. Let's say ये हमारा mean position है, यहाँ पे x equals to 0 होगा, that is the displacement of particle is 0. And these are the two extreme positions. यहाँ पे जो है basically extreme position पे we can say the particle का displacement जो होता है वो होता है maximum, जिसको हम कहते हैं amplitude, right? So ये distance basically amplitude है. Amplitude is nothing but the maximum displacement of particle from mean position. Omega is the angular frequency. T is the time at which the displacement has been calculated. Phi is the initial phase. So initial phase की जब हम बात करते हैं तो if the particle is starting from mean position, that is MP, we are abbreviating it, so initial phase will be 0. And if it is starting from extreme position, so the value of phi comes out to be pi by 2. So this is what the situation. हमें यहाँ पे इतनी बातें regarding this equation we need to be clear with. इसके बाद we need to have expression for velocity. Velocity के दो expression हमें मिल सकते हैं, एक तो इसको differentiate करके and दूसरा is omega under root of a square plus x square. It is not in terms of time, right? तो हमने velocity के expression in terms of x जो क्या है displacement and omega and a के terms में लिखा है a square minus x square. So ये एक expression we need to also keep in mind. Acceleration का expression आता है minus of omega square into x. अगर हम उसको differentiate करेंगे twice तो हमें acceleration मिलेगा और वो जो expression आता है वो यही आता है, ठीक है. अब जो सिचुएशन हमें गिवन है, लेट्स ट्राई टू एनालाइज दैट. अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम हैविंग एम्पलीट्यूड ए पोजेसेस वेलोसिटी रूट 3 by 2 times द वेलोसिटी एट द मीन पोजीशन, राइट. सो मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है पार्टिकल की वो होती है मैक्सिमम. सो हमें यहाँ पे दो थोड़ी सी ये चीज़ें ध्यान रखनी है. ये x इक्वल्स टू 0 वाली पोजीशन है, ये x इक्वल्स टू लेट्स से प्लस है एम्पलीट्यूड है यहाँ पे, एंड यहाँ पे जो है एम्पलीट्यूड है वो है माइनस है, ठीक है. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है मिनिमम यानी कि 0. यहाँ पे वेलोसिटी होगी मैक्सिमम, क्योंकि हम ये एक्सप्रेशन से अगर देखें तो x की वैल्यू अगर हम इसमें 0 डालें तो ये वैल्यू आती है a ओमेगा, राइट. और अगर हम x की वैल्यू a डालें तो वेलोसिटी आती है 0 जो कि एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है. सो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू हैव. यहाँ पे वैल्यू होती है मैक्सिमम किसकी, वेलोसिटी की, और वो होती है a ओमेगा. तो हमसे वही क्वेश्चन में बोला गया, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम हैविंग एम्पलीट्यूड ए पोजेसेस वेलोसिटी रूट 3 by 2 times द वेलोसिटी एट द मीन पोजीशन. सो पर्टिकुलर कहीं पे होगा पार्टिकल, लेट्स से यहाँ पे कहीं पार्टिकल है, हम मान लेते हैं यहाँ पे उसकी वेलोसिटी लेट्स से गिवन है, ठीक है ना. तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं m, लेट्स से. सो वेलोसिटी एट m इट इज बीन गिवन एज रूट 3 by 2, और वो मीन पोजीशन की वेलोसिटी से गिवन है, राइट. इसको हम n नहीं बोलते, n बोल देते हैं. मीन पोजीशन के लिए हम m बोल देंगे इसको, ये मीन पोजीशन है. सो मीन पोजीशन पे तो वेलोसिटी मैक्सिमम है हमें पता है, तो रूट 3 by 2 इंटू a ओमेगा. तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया वेलोसिटी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट n, ठीक है. द डिस्प्लेसमेंट हमसे पूछा गया था. सो बेसिकली हमें ये डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट x ये निकालना है, ठीक है. तो वी कैन सी फ्रॉम द सिचुएशन, हम अगर हमें x निकालना है तो वी कैन सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन द एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी, राइट. सो वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में हम रखेंगे, दैट इज द एक्सप्रेशन जो हमने लिखा. वी नो सिंस v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है. तो यहाँ पे v की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, दैट इज फॉर n पार्टिकल हम बात कर रहे हैं. सो इट इज रूट 3 by 2 इंटू ए ओमेगा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर. तो यहाँ से ओमेगा ओमेगा तो कैंसिल हो जाएगा. ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड इट विल बी 3 by 4 ए स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर. अब वी हैव टू बी केयरफुल, हमें एम्पलीट्यूड स्मॉल a गिवन है तो हम इसको स्मॉल a लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है. हर जगह हम क्या लिख देंगे इसको, स्मॉल a, ठीक. दैट इज नॉट अ
डिफरेंस हो गया। सो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू की क्या देख सकते हैं, इट कम्स आउट टू बी ए स्क्वायर माइनस ऑफ 3/4 ए स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाय 4। फाइनली जो रिजल्ट हमें दिख रहा है एक्स का वो क्या दिख रहा है a/2। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वी विल बी गेटिंग, जो कि मैच होता हुआ दिख रहा है ऑप्शन ए के साथ। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।